Con and Tmod. So I'll just share the PPT that I have prepared till now. Okay. First of all, just for a curiosity sake, is the way of teaching that I teach right now कि मैं PPT पे जो लिख के दिखाता हूँ, is that okay for you guys? या मैं PPT दिखा के पढ़ाऊँ आपको? लिख के लिख के बराबर है ना? अभी तक जो चल रहा है बराबर चल रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आप सबको? हाँ सर। So अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस होता है, you just inform me. क्योंकि वो मेरे लिए भी थोड़ा आसान पड़ता है because it is as if I'm teaching in the class, so I think that approach is okay. अगर PPT होगा तो I would be restricted to that content only. Okay, so इस वजह से मैं PPT generally I don't prefer, but because many of you wanted as a note, so I just have prepared that PPT, so I'll quickly open. So मॉड्यूल 2 में हमने लगभग ये सब तो देख लिया था लास्ट टाइम, उसको और एक्सटेंड किया है मैंने. आर्किटेक्चर हो गया था हमारा, देन SFR 8051 का इंटरनल रैम का स्ट्रक्चर हो गया था हमारा. या तो SFR हमने वो डायग्राम भी मैंने लास्ट टाइम डाल दिया था. सो टाइमर सेक्शन मैंने अभी ऐड किया है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन सेट जो है हमारा वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे को वो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है. एंड आई थिंक वो मैंने 112 इंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए थे एंड 111 इंस्ट्रक्शन. सो आई थिंक वो आप वीडियो से देख सकते हो. Timer section is a very complex one, so that is why I have included that in my PPT. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है टाइमर सेक्शन में, we'll just check it out कि हमने वो PPT के अकॉर्डिंगली अब तक कितना फॉलो अप किया है. So 8051 has two 16-bit up counters which is T1 and T0. ये हमने देख लिया है. 8051 के पास दो टाइमर होता है, एक को T1 बोलते हैं, एक को T0 बोलते हैं, और दोनों अप काउंटर होता है. ओके, सो अप काउंटर बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 0000 एंड इट गोज अप टिल FFFF. Okay, so that is called as, that is the first point that is written over there. If the counter counts internal clock, अगर वो internal clock count करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? What we call it as timer. और अगर वो external clock के through pulse count करेगा, it will be called as a counter. So external pins कौन सी होती है? Do you guys know which are the pins that is there? There is external pin T0 and T1, which is pin number P3.4 and P3.5. 4 and 5. Yeah, so P3.4 और P3.5 पे अगर आप external pulse दोगे, in that case your T0 और T1 will be acting as a counter. अगर internal वाले use करोगे तो it will be called as a timer. उसके बाद each counter is divided into two 8-bit register. So timer 1 का जो दो 8-bit register होगा वो एक को TH1 बोलेंगे और एक को TL1 बोलेंगे. Timer 0 का जो दो 8-bit register होगा एक को TH0 बोलेंगे, एक को TL0 बोलेंगे. Then timer action is generally controlled by two registers. The first one is called as a T-con and second one is called as a T-mod. So T-con stand for timer controller and T-mod stand for timer mode. So दो register होगा. So total number of SFR that is there in this particular timer section is, we have got 6 SFR. कौन से? TH1, TL1, TH0, TL0, T-con and T-mod. And all these register are कितने bit का register? 16 और 8? 8 bit. So ये हमने अभी तक पढ़ा. Then we have seen the T-con register. I think last time हमने ये देखा था. So T-con register के अंदर 8 bit होते हैं. पहला जो bit होता है that is TF1, then we have TR1, then TF0, then TR0, then I1, then IT1, then I0, IT0. So TF1 and TF0 जो आपका होता है that decides whether your timer has been overflown or not. अगर वो 1 होगा इसका मतलब overflow हो चुका है और आपको इंटरप्ट थ्रो करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज डिसाइडेड बाय TF1. अगर वो 0 हुआ इसका मतलब जो आपका टाइमर है वो ओवरफ्लो नहीं हुआ है. सो TF1 इज द ओवरफ्लो फ्लैग फॉर टाइमर 1 एंड TF0 इज द ओवरफ्लो फ्लैग फॉर टाइमर 0. उसके बाद हमारे पास दो रन बिट होता है, रन कंट्रोल बिट बोलो या रन बिट बोलो बेसिकली. सो TR1 और TR0 करके दो रन बिट है हमारे पास, which tells whether which basically control software और hardware. How it controls? Software, because आपको उसको चेंज करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. So in order to make it as a 1, you have to make as a set B at that particular bit. अगर क्लियर करना होगा तो क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा. So TR1 and TR0 are the two bits which basically controls whether your timer is running or it is in the stop state. So अगर रनिंग है तो इसके लिए उसको आपको 1 करना पड़ेगा, अगर उसको चालू करना है तो 1 करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना होगा या हॉल्ट करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? 0. So that is TR1 and TR0, and R1 and TR1 and TR0, that 1 and 0 represent your respective timer. So अगर आपको टाइमर 1 को स्टॉप या स्टार्ट करना है तो कौन सा बिट को 1 करना पड़ेगा? TR1 को. और अगर टाइमर 0 को स्टॉप या स्टार्ट करना है तो कौन से बिट को अगर आपको करना पड़ेगा 0 या 1? TR0.
ओके सो वो हमने देखा. उसके बाद वी हैव गॉट IE1 एंड IE0. ओके व्हिच इज द external interrupt that we have. So ये external interrupt जो है आपका IE1 and IE0, basically it identifies whether your external interrupt is enabled or it is disabled. Okay, या वो आया है कि अकर हुआ है कि नहीं. So if there is an external interrupt occur, in that case your external interrupt will be made as 1. If it is not occurred, in that case it will be made as 0. External interrupt occur कहाँ होता है, where it is occurred, on which pin it occurs, external interrupt? INT. INT1 and INT0. तो INT1 एंड INT0 आर द 2 पॉइंट्स जहां पे आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट अकर होगा. सो अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, इन दिस डायग्राम वी हैव गॉट INT1 एंड INT0 आर द 2 पॉइंट्स वेयर एक्सटर्नल इंटरप्ट अकर. तो अगर INT1 पे अगर इंटरप्ट अकर होगा तो कौन सा फ्लैग 1 होगा, या which bit will become 1, IE1 और I0? I1. IE1. और अगर INT0 पे अगर इंटरप्ट अकर होगा तो इन दैट केस IE0 will become 1. ओके so ये आपका IE1 और IE0, which is your external interrupt flag, that is been decided, that is that tells the processor where interrupt has been occurred or not. Okay, so these are the flags. 4 फ्लैग है 4 इंटरप्ट के लिए, एक TF1 TF0 फॉर आइडेंटिफाइंग कि आपका टाइमर ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं, और 2 इंटरप्ट के लिए होता है which is I1 and I0. so टोटल इस डायग्राम में 4 इंटरप्ट है एंड टोटल इंटरप्ट सपोर्टेड बाय 8051 इज 5 इंटरप्ट्स. ओके सो 4 तो हमने लगभग इसी में पढ़ लिए हैं, एक और बच गया which is serial communication. so yeah, please remember that when we are going into the interrupt topic. जब इंटरप्ट टॉपिक में जाएंगे तो उस टॉपिक को याद रखना कि ये 4 वापस रिविजिट करना पड़ेगा हमें उस टाइम पे. Then we have got IT1 and IT0. Okay, so these are called as interrupt टाइप कंट्रोल बिट. सो टाइप कंट्रोल बिट मतलब बेसिकली इंटरप्ट जो होता है वो ट्रिगर जो होता है वो 2 तरीके से होता है. वन इज कॉल्ड एज एज ट्रिगर एंड अदर इज कॉल्ड एज अ लेवल ट्रिगर. ओके सो अगर एज ट्रिगर होता है, यानी अगर आप 0 से 1 के बीच में अगर आप जाते हो और वो आपको विजिबल होना चाहिए, इन दैट केस या प्रोसेसर को विजिबल होना चाहिए, आप यानी प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर को विजिबल होना चाहिए दैट चेंज दैट इज हैपनिंग फ्रॉम 0 to 1, इन दैट केस आपको उस इंटरप्ट को 1 सेट करना पड़ेगा. और अगर आपको लेवल ट्रिगर करना है, यानी वो 1 इज इट डजंट मैटर कि वो 0 से 1 जाते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज ऑन 1 दैट इंटरप्ट इज एनेबल. अगर वो सिचुएशन है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ लेवल ट्रिगर. सो दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ IT1 एंड IT0. सो अगर आपने IT1 को 1 सेट किया, इट मींस इट इज एज ट्रिगर्ड. अगर 0 सेट किया तो इट इज लेवल ट्रिगर्ड. सिमिलरली IT0 को अगर आपने 1 सेट किया, इट मींस इट इज एज ट्रिगर्ड. Your interrupt which is occurred at INT0, that is edge triggered. और अगर वो IT0 को 0 सेट किया तो interrupt which occurred at INT0, that is level triggered. Is this point clear? Yes, sir. Yeah. So ये हमने देखा. उसके बाद हमने एक रजिस्टर देखा which is called as a timer mode register. Okay. So T-mode register is again 8-bit register. उसके अंदर 2 पार्ट होता है. पहला पार्ट टाइमर 1 बोलता है, टाइमर दूसरा पार्ट टाइमर 0. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू लर्न इज यू हैव टू लर्न 4 बिट ओनली. 4 बिट अगर आपने समझ लिया तो ऑटोमेटिकली वो बाकी के आगे के जो 4 बिट रहेंगे वो रिपीट ही होंगे. ओके सो व्हाट आर द 4 बिट्स दैट इट हैज अ गेट, इट हैज अ C/T bar, it has M1 and M0. So the first 2 bit which is M1 and M0 will basically select your mode, in which mode you are working. So अगर आप नीचे देख पा रहे हो there is a truth table. So we have got M1 M0 और उसका respective timer mode आपको select करना है. So because there are 2 bits, so how many modes will be there in total? 4. So the modes will be mode 0, mode 1, mode 2 and mode 3. ये 4 मोड को अगर आपको select करना होगा तो M1 and M0 का कंटेंट आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा. So let's assume अगर मैंने यहाँ पे I'll just take a pen. Yeah. So अगर मैंने let's assume मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया. So timer 0 is working in which mode? Mode 3. Mode 3. और अगर मैंने 0-1 कर दिया तो it is working in Mode 1. So ये mode 1 क्या है, mode 2 क्या है, mode 3 क्या है, that is the discussion that we'll be doing today. Okay, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Okay, that is the only part that is remaining. Then we have got a bit which is called as C/T bar. यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से. That is T bar over there. Okay, so it is C/T bar. So it decides whether your timer is working as what and what. Timer or counter. It is acting as a counter or timer. So अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया तो it is acting as what? Timer 0 is acting as what? Counter. So if it is a counter, जो clock pulse आएगा वो कहाँ से आएगा? Internal या external? External. External. Okay. So that is decided by this particular pin, which is C/T bar. Then we have got a gate. That gate is nothing but it is gate enable control bit. So basically ये enable करता है कि आपको hardware support है या नहीं है.
सो अगर आपने गेट पे 1 कर दिया, इसका मतलब आपको हार्डवेयर सपोर्ट मिलेगा, और ये हार्डवेयर सपोर्ट कहाँ से आएगा? फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंटरप्ट। सो अगर आपने टाइमर 0 को हार्डवेयर सपोर्ट दिया, तो वो हार्डवेयर सपोर्ट कहाँ से आएगा? कौन से इंटरप्ट से आएगा? INT0 से, INT1 से? INT0। इट विल बी कमिंग फ्रॉम द INT0। लेकिन अगर आपने हार्डवेयर सपोर्ट दिया तो आप बटन से कंट्रोल तो कर पाओगे, लेकिन आपको इंटरप्ट का जो सपोर्ट था वो आप लूज कर दोगे। तो आप कोई दूसरा अगर आपको इंटरप्ट करना होगा, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इट, बट देयर आर एडवांटेज आल्सो। अगर एक कोई लेमैन बंदे को अगर टाइमर या काउंटर चलाना है, तो विद द हेल्प ऑफ बटन यू कैन डू दैट, लेकिन वो बाकी इंटरप्ट वो नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। सो गेट में क्या है? इफ इट इज सेट एज 1, timer controlled by hardware. Okay, if it is set as 1, it is controlled by hardware, and generally INTX signal is generally used. INTX का मतलब either it is INT0 or it is INT1, depending on the timer that you are making as a hardware controller. Okay, so अगर टाइमर 0 को अगर आपने हार्डवेयर कंट्रोल करना है, तो आपको INT0 सिग्नल पे आपको हार्डवेयर कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपको टाइमर 1 को कंट्रोल करना है, हार्डवेयर एनेबल करना है, तो INT1 से आप वो सिग्नल ले सकते हो। इज दैट क्लियर? INTX का मतलब समझ में आया ना? INTX का मतलब it is either INT0 or INT1, depending on the timer that you are choosing. So अगर टाइमर 0 होगा तो INT0 होगा, टाइमर 1 होगा तो INT1 होगा। And if it is made as cleared, who is made as cleared? Gate। अगर गेट को क्लियर कर दोगे, 0 कर दोगे, so that means जो उसका डिपेंडेंस है वो it is not dependent on INTX। वो INTX पे डिपेंड नहीं होगा, उसका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं होगा। Okay, so this is what we have discussed in the T-mod। So टाइमर 0 अगर आपको समझ में आ गया 4 बिट का, तो टाइमर 1 के लिए भी इट इज सेम एज, इट इज एज सिमिलर एज दैट। ओके, दोनों टाइमर का जो मोड है, क्या वो दोनों टाइमर एक ही मोड में होगा या डिफरेंट मोड में वर्क कर सकते हो? टाइमर 0 एंड टाइमर 1 डिफरेंट। सो इट इज एज पर योर चॉइस। अगर आपको एक ही मोड में चलाना है तो आप एक मोड में चला सकते हो, अलग मोड में करना है अलग मोड में कर सकते हो। क्या दोनों टाइमर होना चाहिए? इट इज कंपलसरी, या एक टाइमर एक काउंटर भी चल सकता है? Both can be different. So it can be working as a same also, it can be working as a different। पहला टाइमर दूसरा काउंटर, पहला काउंटर दूसरा टाइमर, दोनों काउंटर। So any possibility is allowed because we have got different bits for the different timers। So every timers are independent of each other। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। किसी को हार्डवेयर एनेबल करना है वो आप कर सकते हो, किसी को सॉफ्टवेयर एनेबल करना है, सॉफ्टवेयर एनेबल तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। अगर हार्डवेयर एनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। वो काउंटर होगा या टाइमर की तरह एक्ट करेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। किस मोड में करेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर 1 बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes। नेक्स्ट हमने टाइमर काउंटर में एक क्या किया कि टाइमर बेसिकली होता कैसे, कैलकुलेट कैसे होता है, वो स्टेप हमने देखा था। सो इन ऑर्डर टू यूज अ टाइमर वी हैव टू काउंट अ वैल्यू। सो टाइमर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट गिव्स यू अ डिले। सो डिले देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। सो लेट्स से अगर मैंने आपको बोला कि माइक्रोवेव ओवन के लिए 5 सेकंड के लिए आपको खाना पकाना है, सो आप एज अ प्रोसेसर मुझे टाइमर को क्या बोलोगे? अगर लेट्स से यू आर अ प्रोसेसर एंड आई एम अ टाइमर, ओके, सो आपको 5 सेकंड का डिले चाहिए, आपको 5 सेकंड तक वो खाना पकाना है। सो आप मुझे टास्क दे दोगे कि प्लीज गिव मी अ डिले ऑफ 5 सेकंड। सो मैं क्या करूंगा? काउंट करूंगा, और ऐसा काउंट करूंगा कि जो भी मैं काउंट कर रहा हूँ वो 1 सेकंड के बाद दूसरा काउंट आएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई काउंट 1, then after 1 second I count 2, then after 1 second I count 3, after 1 second I count 4, and after 1 second I count 5। as soon as I reach 5 I'll be informing you 5 सेकंड हो गए। एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू, आपका काम क्या है? 5 सेकंड के बाद आपको कुक को स्टॉप करना है। ओके, सो आप ISR के पास जाओगे, आप कुकिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर दोगे, और स्टॉप करने के बाद आप फाइनली एक मैसेज डिस्प्ले करोगे व्हिच इज एंडिंग ऑफ कुकिंग। ओके, सो ये आपका बेसिकली टाइमर और काउंटर ऐसे वर्क करता है। ओके, सो फॉर दैट यहाँ पे पहला जो लाइन लिखा है, टू यूज द टाइमर a certain count value is placed in the count register। यानी सबसे पहले आपको काउंट अपलोड करना पड़ेगा, काउंट रजिस्टर के अंदर डालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द काउंट, द फार्मूला इज, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द काउंट? मैक्स काउंट minus desired count plus 1। so that is a formula that you have। ये जो काउंट आपका आएगा ये आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा? रजिस्टर में डालना पड़ेगा। which count register we have? टाइमर 0 के लिए कौन सा रजिस्टर होता है? TH0 TL0 TH0 and TL0। टाइमर 1 के लिए we have TH1 and TL1। उसके अंदर आपको ये काउंट डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑन ईच काउंट, ओके, द काउंटर इंक्रीमेंट्स। हर काउंट पे टाइमर जो होगा वो इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज इट इज एन अप काउंटर। अगर डाउन काउंटर होता तो क्या होता?
काउंटर इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है? डिक्रीमेंट होता, बट बिकॉज 8051 में बाय डिफॉल्ट इट इज एन अप काउंटर, सो जो काउंटर होगा हर एक काउंट के बाद इंक्रीमेंट होगा, ओके। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक। अगर वो इंटरनल क्लॉक होगा देन इट विल बी एक्टिंग एज अ टाइमर, और अगर वो एक्सटर्नल क्लॉक होगा, एक्सटर्नल पल्स अगर आएगा तो इट विल बी एक्टिंग एज अ काउंटर, ओके। सो ये क्लॉक आने पे, ये पल्स आने पे काउंटर जो होगा वो इंक्रीमेंट होगा, ओके। व्हेन द काउंटर रोल ओवर, यानी वो बेसिकली 0 FFFF से वो रोल होकर के 0 पे आएगा, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो, okay. As soon as your timer overflow, the respective overflow flag will be made as 1, okay. So अगर timer 1 overflow होता है तो TF1 1 हो जाएगा, timer 0 अगर overflow होता है तो TF0 will become set या 1, okay. If timer overflows, अगर जैसे timer overflow होता है तभी वो क्या होगा, interrupt causes an interrupt enable हो जाएगा, ओके। इंटरप्ट होने एनेबल होने पे क्या होगा, आपका जो प्रोसेसर जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा था वो वहां पे हॉल्ट हो जाएगा। इट विल फर्स्ट go to the ISR. As soon as it goes to ISR, it will make the content of TF as TF के कंटेंट को क्या करेगा, 1 को 0 बना देगा, और उसके बाद ISR को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। As soon as ISR is executed, it will go back to its previous position, और वहां से आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन को चालू कर देगा। Is this process clear? Is the process clear? Yes, sir. Yes, sir. तो हम अब तक हमने इतना देखा है। हाँ, हमने ये भी देख लिया है विच इज द टाइमर काउंटर लॉजिक। टाइमर काउंटर लॉजिक का मतलब, अगर जो भी आपने टीकॉन और टीमोड को अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आई थिंक ये डायग्राम हमने बनाया था लास्ट टाइम, बनाया था, या। So we have a oscillator frequency. That oscillator frequency is divided by 12. Okay, 12 से आप divide करते हो। So अगर आप ये इस पाथ से आते हो, so you're following as timer or counter? Timer, because the frequency that you're passing is a internal frequency, which is a fixed frequency. It is not a variable frequency. Whereas अगर आप T1 या T0 से अगर input देते हो, so in that case we are passing a variable frequency, so in that case it will be called as a counter. And who decides that? There is a switch decided by C/T bar. So C अगर C/T bar अगर 0 होगा, in that case it will be acting as a timer. तो switch जो होगा वो इससे connect हो जाएगा, तो यानी टाइमर से, यानी आपका इंटरनल फ्रीक्वेंसी से आपका क्लॉक आएगा। और अगर C/T bar अगर आपका 1 होगा, in that case it will be acting as a counter. In that case ये जो स्विच होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। In that case जो क्लॉक आपका इनपुट पिन जो था वो इनपुट यानी एक्सटर्नल आपका पल्स से आपका क्लॉक कंसीडर किया जाएगा। सो जो आपका क्लॉक आएगा वो इट विल बी कमिंग फ्रॉम आइदर T1 पिन या T0 पिन से आएगा। सो इन दैट केस इट विल बी एक्टिंग एज अ काउंटर। उसके अलावा ये जो आपका टाइमर है, यानी ये जो क्लॉक है आपका, वो क्लॉक आपको यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड करना है या स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, ये सब डिसाइड करने के लिए यू हैव गॉट टू कंट्रोल। One is called as a hardware control and other is called as software control. So by default आपको software control तो मिलता ही है। So that controlling of a timer with the help of software is controlled by two register. One is called a 2 bit. One is called as a TR1 and other is called as a TR0. तो TR1 और TR0 को आपको स्टार्ट करने के लिए, या अगर 1 कर दोगे तो enable हो जाएगा, 0 कर दोगे तो आपका जो टाइमर रहेगा स्टॉप हो जाएगा। So that is called as a software way of controlling. Another way of controlling is called as a hardware controlling. So hardware control करने के लिए आपको गेट बिट को 1 करना पड़ेगा या 0 करना पड़ेगा। So अगर 1 कर दिया तो आपको हार्डवेयर सपोर्ट मिलेगा, एंड हार्डवेयर सपोर्ट करने के लिए आपको INT1 या INT0 से सिग्नल लेना पड़ेगा। So that is depicted with the help of this diagram. I think I have already explained. So is this particular diagram clear, or do you want me to explain it again? Clear. Can we go to the next part, the last part of timer? Yes. Yeah, so the next is we have got timer mode. So I'll be switching back to the previous approach of teaching, which is I will switching to the black screen and I will try to write it on this. Okay, so we have got 4 different timer modes. So we start the topic as, or they write the topic as timer mode. Write down the topic as timer mode. And this timer mode is very important. So this explicitly ये क्वेश्चन भी आ सकता है 10 मार्क के लिए। There might be a chances कि explain the different timer modes of 8051. So आपको सिर्फ टाइमर मोड ही एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके,
So yeah, so timer mode जो है हमारे 8051 में कितने हैं? What are the total number of timer modes that we have? How many timer modes we have? We have got 4 different modes in which your timer can work. Okay, so हमारे पास 4 मोड है. Okay, namely your first timer mode that we'll be discussing is called as, it is called as 13-bit timer. So it is mode 0. This is timer mode 0, and that timer mode is called as a 13-bit timer. Okay, तो 13-bit टाइमर का मतलब क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ 13 बिट में ही आपका काउंट जनरेट करके देगा. बिकॉज ऑफ विच, व्हाट इज द मैक्स काउंट अलाउड? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्स काउंट अलाउड? अगर 13 बिट को यूज करना है, so इसका मतलब स्टार्टिंग काउंट विल बी 13 0 एंड द लास्ट एड्रेस वुड बी 13 1. So can you tell me what is the last count, max count? तो 13 1 बना लो, कितना होता है? 1 2 3 8 KB, 8000. 5 6 7 8 9 10 11 12 and 1. So what is the last count that I can have? This can be called as F. This can be called as F. This can be called as F. And this can be taken as 1. So पहला जो count होगा that will be 0 0 0 0 and the last count that it can support is 1 F F F. इसके बाद अगर +1 करोगे तो it will roll back to 0 0 0 0 and वो आपका क्या हो जाएगा? That condition is called as timer overflow. Is this point clear? Is this point clear? Yes, sir. Yeah. So इसके अंदर सिर्फ 13 बिट ही है आपके पास रजिस्टर के अंदर, उस 13 बिट को ही आप इंक्रीमेंट कर सकते हो. बाकी बिकॉज इट हैज 16 बिट, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 बिट को ही आपको यूज करना है. लेकिन इसका रिक्वायर है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार बाकी 3 बिट क्यों छोड़ दिया हमने? छोड़ा इसलिए है क्योंकि देयर इज अ सीरियल कम्युनिकेशन. उस सीरियल कम्युनिकेशन में वी हैव टू हैव अ 32 बिट का फ्रीक्वेंसी स्प्लिटिंग. ये क्या है वो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. इसको अगर रिप्रेजेंट कराना है वो कैसे कराना है. ओके ओके, विल जस्ट स्टार्ट विद अ नॉर्मल नंबर. अगर मैं काउंट करता हूं, डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूं, सो 0 1 अगर मेरे पास नंबर होगा, ओके, सो अगला काउंट क्या होएगा 0 1 के बाद? What is the next count that I get? We are talking about decimal number. We get what? 0 2. आप क्या करते हो? 1 के अंदर एक ऐड कर देते हो, 0 2 बन जाता है. 0 2 के बाद 0 3 आता है, 0 3 के बाद 0 4 आता है. It reaches to let's say 0 9. 0 9 के बाद क्या होगा? What will happen? You will add 1 to it. 1 0. 1 कहाँ पे ऐड करोगे? 1 कहाँ पे ऐड करोगे? In the unit place or the 10th place? If let's say if this is unit place, this is 10th place. So 1 आप कहाँ पे ऐड करोगे? Where you add 1? 10th place. 1 आप यूनिट पे ही ऐड करते हो. So 9 plus 1 will become 10. So ये 0 बन जाएगा और क्या होगा? It will overflow और it will add 10th में एक ऐड कर देगा and because of that 1 plus 0 will become 1 now. Clear है? So हमेशा एडिशन कहाँ पे होगा? यूनिट में ही होगा हमेशा. अगली बार क्या होगा? 1 1 होगा. 1 1 कैसे होगा? 0 के अंदर आप 1 ऐड करोगे, इट विल बिकम 1 एंड ये 1 था तो 1 रहेगा एज इट इज. उसके बाद 1 1 के बाद क्या आएगा? 1 2 आएगा. 1 2 के बाद 1 3 आएगा. एवरी टाइम यू आर एडिंग इन द यूनिट प्लेस ओनली. इट रीचेस टू 1 9 लेट्स से. अभी आप क्या करोगे? ऐड कहाँ पे करोगे? 10 में करोगे या यूनिट में करोगे? यूनिट में ही करोगे ना आप. फिर से यू ऐड इन यूनिट प्लेस ओनली. सो आप ऐड करोगे यूनिट प्लेस में. 9 plus 1 will become 10. बिकॉज इट बिकम्स 10 इट विल ओवरफ्लो. सो ये 0 पे वापस रोल बैक कर देगा और एक ऐड यहाँ पे कर देगा. इट विल ऐड 1 to the 10th place and it will become 20. So basically what is happening every time you are adding where? In the unit place or 10th place? Unit place. Okay. So remember that. So हम जो टाइमर बनाने जाएंगे, जो रजिस्टर आपका होता है, that register that we make is called as TLX. X का मतलब either it is 0 or it is 1. Okay. Then we have THX. Okay, just a second. Yeah, sorry, कुछ मैसेज आ गया था अर्जेंट इसके लिए. Okay, so we have got a TLX, then we have got THX, okay, and then we have got TFX. Okay, so generally ज्यादातर टाइमर में यही होता है. एक टाइमर अगर आपको समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली आपको बाकी टाइमर समझ में आ जाएगा. Okay,
So we have got TLX, we have got THX, then we have got TFX. इसका जो आउटपुट होगा, okay, that is nothing but your timer interrupt. Okay, TFX के बाद आपको क्या मिलता है? टाइमर का इंटरप्ट मिलता है. Okay, so timer interrupt is your output. Where is the input coming from? Input क्या होगा? TLX को input कहाँ से मिलेगा? What is the input coming into TLX? It is coming from the input stage. Input stage यानी जो आपने लॉजिकल डायग्राम बनाया था ना, आपने लॉजिकल डायग्राम बनाया था आपने, which was दो वे से आ सकता है, आपका क्लॉक से आ सकता है, या तो आप इंटरनल क्लॉक से आ सकता है, या तो T0 T1 पिन से आ सकता है. उसको एनेबल करने के लिए आप हार्डवेयर पिन यूज कर सकते हो, which is INT0, या सॉफ्टवेयर से आप TR0 या TR1 से आप उसको कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. वो डायग्राम जो हमने बनाया था लास्ट टाइम, याद है आपको? Am I audible? Yes. Yeah, so I'll just go to that particular diagram. मैं वो डायग्राम पे जाता हूँ. So I'm talking about this diagram. ये जो डायग्राम है, okay, ये डायग्राम का जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या आएगा? What will be the output of this diagram? What will be the output of this diagram? Output is nothing but it will be clock. Clock होगा ना. वो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, या तो वेरिएबल होगी या तो फिक्स्ड होगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर चूजिंग एज अ काउंटर और अ टाइमर. सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो लेट्स अज्यूम सो यहाँ पे जो इनपुट स्टेज में जो आप यहाँ पे इनपुट लोगे, दैट इनपुट इज नथिंग बट योर क्लॉक बेसिकली. सो वो या तो वेरिएबल हो सकता है, ओके, काफी टाइम के बाद आपका पल्स आएगा, या तो एक ही इंटरवल पे आएगा. सो इफ इट इज कमिंग ऑन द फिक्स्ड इंटरवल, देन योर टाइमर विल बी एक्टिंग एज अ timer. And if the pulse is coming at a variable interrupt or variable interval, in that case, आज बहुत प्लेन जा रहा है यार इधर से कंटिन्यूअसली. सो अगर वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से अगर आपका क्लॉक पल्स आएगा, इन दैट केस इट विल बी एक्टिंग एज अ काउंटर. ओके, सो ये जो इनपुट स्टेज है, वो इनपुट स्टेज जो आपने डायग्राम देखा था, दैट डायग्राम से जो आउटपुट आएगा, that will come into this particular register. Is this clear? Is this part clear? Yes, sir. Yes. Yeah. So TLX, which is a 8-bit register, उस 8-bit register में से हम सिर्फ 5 बिट को ही यूज करेंगे. We'll use only 5 bits. Okay? ये 5 बिट 1111 यानी 5 ones होते ही अगली बार 1111 का जब रोल ओवर होगा, यानी 000 बनेगा, it will get rolled over and it will make THX as THX plus 1. Okay, so THX में let's say अगर 8 बिट का है, so 8 बिट का वो क्या होगा? 00000000, यानी 8 0 होंगे, वो 1 आते ही वो it will become 00000001. So every time TLX get roll over, it causes THX to increment by 1. THX increment होते as soon as it goes FF पे जब जाएगा, जब ये रोल ओवर होगा, इट विल कॉज माय TFX टू बिकम 1. TFX 1 होते ही इट विल कॉज एन इंटरप्ट. वो बोल देगा मेरा टाइमर जो है वो ओवरफ्लो हो गया. टाइमर जैसे ही ओवरफ्लो होगा, वो इंटरप्ट अकर करेगा. आपका जो कंट्रोलर है, जो आपका प्रोसेसर है, वो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन हॉल्ट कर देगा. इट विल it will go to the ISR. As soon as it goes to ISR, TFX का जो बिट है, जो 1 था, उसको 0 कर देगा. It will perform the ISR. It will execute the ISR. ISR execute होते ही it will go back to its normal execution, and then you can control your timer for the other operation. So I will just explain the operation क्या हो रहा है यहाँ पे. So TLX के अंदर 5 बिट है. 5 बिट कौन सी है? 0 0 0 0 और एक और 0, यानी 5 0 है आपका. ये 5 0 को आपको कंट्रोल करना है. So पहला पल्स आया, पहला पल्स आने के बाद ये क्या बन जाएगा? What will happen? What it will become? It will become 0 0 0 0 1. अगले पल्स में क्या बन जाएगा? What it will become? 0 0 0 1 0, which is 2. उसके अगले पल्स में क्या बन जाएगा? 0 0 0 1 1, which is 3. बराबर ना? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? Yes, sir. So what would be the last, मतलब रोल ओवर होने से पहले what will be the last value of it? क्या वैल्यू होगी इसकी? It will be 5 ones. It will be 5 ones. Okay. What about THX? Initially THX की वैल्यू क्या है? It is 8 zeros. It is 8 zeros. Because ये 8 bit का रजिस्टर है, right? So it will have 8 0.
As soon as it becomes 1 1 1 1, अगली बार फिर से जब आप काउंट करोगे, okay, जब एक और पल्स आएगा, so it has to do what? It performs an operation which is called as rollover. Rollover होगा तो TLX क्या होगा? Overflow होगा. जैसे ये TLX overflow होगा, it will make the content of THX as, it will add THX में क्या ऐड करेगा? 1. So ये क्या बन जाएगा? THX क्या बन जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0. What will become this? You add 1 to it, it will become 1. Is this point clear? Is this point clear? ये जब 0 0 0 0 0 0 1 जब बन जाएगा, अब फिर से ये स्टेप वापस रिपीट होगा. It will repeat again for the next pulse. It will become this. उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, until it reaches this point. Again ये roll over होगा. Again second time पे जब ये roll over होगा, this will become 0 0 0 0 0 0 1 0. Okay? So ये भी ऐसी चलते रहेगा. Okay? उसके बाद फिर से ये वापस यहाँ से 0 0 0 0 से 1 1 1 1 जब ये रोल ओवर होगा, अगली बार इसकी वैल्यू जो होगी, it will become 0 0 0 and this will become 0 0 1 1. Okay? ये कब तक चलता रहेगा? Till what time it will go like this? Till it goes 8 ones. 8 ones. 8 ones. Okay? 8 ones पे ये आ चुका है. 8 ones पे आ चुका है. उसके बाद TLX का कंटेंट क्या होगा? 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा, ये जाएगा 1 1 1 1 तक. अब क्या हो चुका है? अब ये आगे नहीं जा सकता. इट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 राइट नाउ. इसमें अगर आप एक और ऐड करोगे इसके अंदर, सो व्हाट विल बी द कंटेंट दैट विल बिकम? इट हैज टू रोल बैक, राइट? इसको भी 0 0 बनना पड़ेगा. इफ यू ऐड 1 टू इट, so what it will become? 1 plus 1 is 0, carry 1, 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 0, carry 1. That means this register has been rolled over. ये roll over हो गया. Plus it has got a carry. यानी ये overflow हुआ ना आपका. As soon as it overflows, it informs TFX and it will make the content of TFX as 1. As soon as TFX becomes 1, it will cause a interrupt to occur. Is this clear? Yes, sir. Yeah. So this is your 13-bit timer. So 13-bit timer जो होता है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक occur होगा? It will start from 0 0 0 0 in hexadecimal if you are talking about, and it goes up till 1 F F F count तक ये जाएगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? अगली बार जब काउंट होएगा तो क्या होगा? इट विल रोल ओवर. फिर F1 FFF के बाद क्या आएगा? 0 0 0 0 आ जाएगा. और इट विल मेक, जो भी अगर टाइमर 1 में अगर ये चल रहा है आपका टाइमर मोड 0 में होगा, तो टाइमर 1 का जो TF1 है, उस TF1 को ये 1 बना देगा. As soon as TF1 has become 1, an interrupt will occur. इंटरप्ट अगर होगा तो वो ISR पे जाएगा. ISR पे जाने के टाइम पे TF1 के कंटेंट को 0 कर देगा and will execute the ISR. After executing the ISR, it will come back to its original position and will perform the normal execution. Is this operation clear? I'll repeat again. फिर से मैं बता देता हूँ. इसके अंदर 2 रजिस्टर होते हैं जो टाइमर के अंदर होंगे. So let's say हम टाइमर 1 की बात कर रहे हैं. Okay, you're working on timer 1 right now. Timer 1 is working on mode 0. So mode 0 के अंदर will be using 2 register. One is called as a TL0 and other is a, sorry, timer 1. So it is TL1 and other is TH1. And the overflow flag कौन सा होगा यहाँ पे? TFX की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? TF what we have over here? 1 over here. Okay. जो इनपुट आएगा इस TL के ऊपर, वो पल्स कहाँ से आएगा? That pulse will be coming from the input stage. So it can be from the internal clock or from the external clock. Okay. So depending on whether you're working as a counter or timer, वहां से वो पल्स आएगा. Let's say आपका पहला पल्स आया. Okay. और let's say आपने TL1 के अंदर आपने डाला था काउंट 1E आपने काउंट डाला है, और TH1 के अंदर आपने 0 0 काउंट डाला है. ओके, दिस इज द काउंट दैट यू हैव पुट इनटू दैट. ओके, सो एक पल्स आने के बाद IE का ये क्या बन जाएगा? व्हाट विल बिकम द नेक्स्ट आउटकम ऑफ IE का नेक्स्ट कंटेंट क्या मिलेगा अगले पल्स में? IF मिलेगा. IF के बाद ये 0 0 ही रहेगा. दिस विल बिकम 0 0 बिकॉज इट हैज नॉट ओवरफ्लोन. बिकॉज इट इज नॉट ओवरफ्लोन, ये 0 0 ही है अभी तक. बिकॉज इट इज नॉट ओवरफ्लोन, तो ये क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, इट विल रिमेन 0 ओनली। अगली बार से फिर से एक पल्स आया, IF का क्या बन जाएगा, व्हाट विल हैपन टू IF, यू विल इंक्रीमेंट 1 to it, 0 सो ये क्या हो जाएगा, ये इट हैज टू रोल बैक, इट हैज टू बिकम 0 0। जैसे ये 0 0 हुआ, इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। सो 1 ऐड करते ये क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दिस, विल बिकम, इट विल बिकम 0 1, बिकॉज इट हैज नॉट ओवरफ्लोन, इट विल रिमेन 0 ओनली। अगली बार ये 0 0 है, इसके अंदर फिर से एक और पल्स आएगा, तो ये क्या होगा, इट विल बिकम व्हाट, 0 1, राइट राइट, 0 0 का क्या होगा, 0 1, ये 0 1 ही रहेगा, ये 0 ही होगा। अगली बार से फिर से एक पल्स है, इट विल बिकम 0 2, इट विल रिमेन 0 1, इट विल रिमेन 0। ये कब तक चलता रहेगा, 0 3 0 4, ये कब तक चलता रहेगा, till it reaches 1F 1F। as soon as it reaches 1F, 1F के बाद अगला जब पल्स आएगा, it will become 0 0, as soon as it become 0 0, it will make this particular TH1 as 0 2, okay। ये कब तक चलता रहेगा, when it will go, till what time it will go, 0 2 कब तक ओवरफ्लो कब होगा, जब ये FF ना बन जाए। जैसे ये FF बनेगा और इसका 1F हो जाएगा, अब ये 1F क्या करेगा, after 1F overflowing, it roll back to 0 0, it will make this FF, it will add FF के अंदर 0 1 to it, it will cause that 0 1 add to FF, 0 1 FF में जब add होगा तो ये भी 0 0 बन जाएगा, यानी ये भी roll over हो जाएगा। as soon as it gets roll over, it will make your TF flag को क्या बनाएगा, ये 0 1 बना देगा, so your timer 1 will get overflow। as soon as timer 1 will get overflow, it causes an interrupt to occur। इंटरप्ट अकर होने पे ये क्या करेगा, इट विल कॉज ISR टू गेट एग्जीक्यूट, ISR को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा। ISR के पास जैसे ही पहुंचेगा तभी उसी टाइम पे इट विल मेक द कंटेंट ऑफ TF फ्लैग के कंटेंट को ये क्या कर देगा, 0 बना देगा, एंड उस टाइम पे ISR को एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ISR, इट विल एग्जीक्यूट द नॉर्मल प्रोग्राम, will execute the normal program, the processor। is this step clear, is this more clear? yes sir So that is your first timer mode। I will go back to the PPT में हम जाते हैं, and we'll just try to understand through PPT now, okay। so yeah, कितना टाइम बचा है ना टाइम, 20 minutes है मेरे ख्याल से, yeah। So the first timer mode, or the timer mode, is a 13-bit timer or 13-bit counter, you can call it as you can configure it। So जो input आएगा, that is a clock pulse that is coming from the input stage। Then TLX के अंदर 5 बिट का आपका TLX 5 बिट का होगा, THX जो है वो 8 बिट का होगा, 8 + 5 is 13, so that is why it is called as a 13-bit timer or counter। And then we have got a TFX is nothing but your timer overflow flag, okay। so X का मतलब either you're working as a timer 0 or you're working as a timer 1, so depending on the timer you're configuring। so अगर timer 0 की बात होगी, तो in that case it will be TL0, TH0 and TF0। अगर timer 1 की बात होगी, तो in that case it will be TL1, TH1 and TF1। is that point clear? so THX is used as a 8-bit counter, TLX is used as a 5-bit preset, hence 13-bit are used for counting। on each count the TLX increment, हर एक count पे TLX increment होगा। each time TLX roll over, it causes THX to increment। जब भी TLX roll over होगा, THX में वो increment कर देगा। when THX roll over, it causes TFX to become 1। thus the input frequency is divided by 32। ये point बहुत important है when we go into the serial communication। अभी इतना जरूरी नहीं है, जब serial communication में जाएंगे, just remember this point। ये क्या करेगा, 32 bit से input frequency को divide कर देगा। we'll look into that point later on, okay। ये बाद में बात कर रखो। the timer overflow flag TFX is set only when THX overflow। जब THX overflow होगा तभी TFX को आपको set करना पड़ेगा, यानी 1 करना पड़ेगा। that is roll over from FF to 0 0। thus max count will be equal to 2 raised to 13, which is 8000, which is equal to 8192 in decimal। in hexadecimal it is 1FFH। hence max delay that you can get is 8192 का max delay आपको मिलेगा। is this point clear? is timer mode clear to you? timer mode 0 clear to you? yes बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है? should I repeat again? Yes, sir.
ओके, आई विल जस्ट रिपीट अगेन, मुझे लग रहा है अभी भी कुछ लोग को डाउट है, सो आई विल स्विच बैक. सो टाइमर मोड क्या होता है? टाइमर मोड का मतलब बेसिकली जो आपका टाइमर है, ओके, वो टाइमर किस मोड में वर्क करे, पहले तो ये हमें समझना है. तो हमारे पास टोटल 4 मोड है, ओके. जो पहला मोड है वो क्या बोलता है कि जो हमारे पास 8 बिट के दो रजिस्टर थे. पहला जो रजिस्टर था विच वाज टीएच रजिस्टर. लेट्स अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट टाइमर 0 ओनली. टाइमर 1 उसी की तरह वर्क करेगा. सो अगर टीएच 0 की बात करते हो, कितने बिट का रजिस्टर है? कितने बिट का रजिस्टर है? 8. 8 bit ka. Okay, so TL0 is a 8 bit register. Then we have got another register which is called as a TL0 register, which is again a 8 bit register. So उसमें से lower data, lower byte किसके अंदर स्टोर करते हो? TL0 में या TL0 में? TL0. तो TL0 में आप lower byte ऐड करते हो, TH0 में आप higher byte ऐड करते हो. ओके, सो हम क्या करते हैं, TH0 के अंदर कुछ डेटा डालेंगे और TL0 के अंदर कुछ डेटा डालेंगे. तो लेट्स से अगर मुझे 5 नहीं 5 या सो आई वांट टू हैव अ मैक्स या मुझे एक डिजायर्ड काउंट चाहिए, यानी मुझे 5 सेकंड का या 5 काउंट का डिले चाहिए. ओके, सो माय डिजायर्ड काउंट दैट आई वांट टू परफॉर्म इज 5. ओके, यानी मेरे को 5 काउंट का डिले चाहिए, यानी 5 बार मैं काउंट करूंगा तो मेरा टाइमर का काम हो जाना चाहिए. ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? माय डिजायर्ड काउंट इज 5. इज इट क्लियर? Yes. या सो अगर मेरे को 5 काउंट का डिले चाहिए, यानी मैं 5 बार काउंट करूंगा, मेरा टाइमर का काम खत्म होना चाहिए और मेरा इंटरप्ट फ्लैग विच इज योर टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 हो जाना चाहिए और मेरा इंटरप्ट अकर होना चाहिए. एज सुन एज 5 क्लॉक पल्स होते हैं तभी मेरा ये इंटरप्ट अकर हो जाना चाहिए. इज दैट पॉइंट क्लियर? सो फॉर दैट आई हैव टू पुट अ काउंट इनटू माय रजिस्टर. मुझे क्या करना पड़ेगा? काउंट डालना पड़ेगा मेरे रजिस्टर में. सो काउंट रजिस्टर में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कैलकुलेट द काउंट, राइट. Yes. So in order to calculate the count, the formula is, what is the count का calculation? Max count Max minus count desired minus desired count plus minus 1. desired count plus 1. This is the count. Now we are discussing about mode 0. Mode 0 की बात कर रहे हैं. Mode 0 में जो count होता है, because it uses a 13-bit timer, what will be the max count that it has? 13-bit का timer है तो max count कितना होगा? Max count is 1FFF. That is because it uses only 13-bit. Out of 16-bit which is available, it uses only 13-bit. There is a reason behind using 13-bit, which we'll be discussing in the serial communication. But let's assume पहला मोड जो है आपका वो 13-bit का ही है, वो 13-bit ही इस्तेमाल करता है 16-bit में से. So अगर 13-bit इस्तेमाल करता है तो जो max count available होगा, that will be 1FFF. Okay, so this is your max count. So put the value and find out the total count. जो count आपको डालना पड़ेगा. Just put the value. तो क्या होगा? Max count is 1FFF. What is the desired count that you want? कितना count चाहिए आपको? 5. 5, and you add plus 1 to it. So put the value in it. What you are getting? So basically 1FFF में से 4 आप डिडक्ट करते हैं. So F that you have over here is 15. 15 में से 4 गए तो कितना बचा? 11. 11 is how much? B. 1011. 11 is B. B. So we have 1FFB. I think I'm कुछ तो गलत बता रहा हूँ मैं. कुछ गलत बता रहा हूँ मैं. I think I have to skip this example. ये example गलत होएगा क्योंकि यहाँ पे FB जो होगा it should go into TL0 and 1F has to go into TH0. But according to that logic, this will generate a wrong answer. It will generate a wrong answer because TL0 में 5 बिट ही है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता. इस केस में ये नहीं हो सकता. Okay, so I think I've taken the wrong example. I will just erase it. Yeah, so आपको काउंट जनरेट करना है. यू वांट टू जनरेट अ काउंट. ओके,
सो आपको काउंट जनरेट करना है एंड दैट काउंट दैट यू आर गेटिंग इज बेसिकली मैक्स काउंट माइनस डिजायर्ड काउंट प्लस 1. सो आपको जो काउंट जो आपको चाहिए या दैट इज ओके ओनली. हाँ ठीक है बराबर. सो 1 FFF जो आपका मैक्स काउंट था उसमें से आप डिजायर्ड काउंट माइनस करते हो. डिजायर्ड काउंट क्या है आपका 05 प्लस 1. सो व्हाट इज योर टोटल काउंट दैट यू वांट. जो आपको काउंट चाहिए वो कितना चाहिए आपको. आपको कितना चाहिए 1 FFB. ये आपको काउंट डालना पड़ेगा बराबर. इज दिस पॉइंट क्लियर. अगर आप इसमें से 1 FFF में से 05 अगर आप डिडक्ट करते हो तो व्हाट इज द काउंट दैट यू गेट 1 FFB बराबर ना. यही काउंट आएगा ना. सब एग्री है इससे. Okay, I will erase it again. I will explain it again. Please pay attention now. The count that I have, the count that I calculate, that is given by the formula max count minus desired count plus 1. That is the formula. ये तो formula हमें पता है ना. ये formula Yes. पता है. What is the max count of mode 0? Mode 0 का max count क्या है? Because it uses 13 bit. So max count कहाँ तक जाएगा ये? What is the last limit it has? 1 FFF. 1 FF. ये भी क्लियर हो गया आपको. मैक्स काउंट कहाँ से आया. मैक्स काउंट कहाँ से आया. बिकॉज जो काउंट करने के लिए जो आप बिट यूज करें वो 13 बिट यूज करें. तो पहला जो काउंट होगा दैट इज वी हैव 13 zeros. Okay, so this is 12 and this is 13 and the last count that it can count is 13 ones. Okay, तो 13 ones का मतलब क्या हो रहा है. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0000h से लेके आप कहाँ तक जा रहे हो. कहाँ तक जा रहे हो. 1 FFF तक जा रहे हो. Okay, so that the max count that you can have out of a 13-bit counter is 1 FFF. So ये point clear हुआ. ये 1 FF कहाँ से आया. Because you're just using 13-bit, max count that you'll be achieving is 1 FFF. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Desired count जो आपको काउंट करना है as per your question हो या as per your problem statement, हमने desired count कितना रखा था. कितना desired count चाहिए आपको. 5. काउंट के बाद आपका इंटरप्ट अकर होना चाहिए. दैट इज दैट यू हैव सेट. ओके, सो डिजायर्ड काउंट आपने 5 डाला एंड देन यू आर एडिंग प्लस 1 टू इट एज पर द फार्मूला. बिकॉज़ द फार्मूला इज मैक्स काउंट माइनस डिजायर्ड काउंट प्लस 1. सो ये जब आप कैलकुलेट करते हो तो FF 1 FFFF minus 05 plus 1 जब आप इसको ऐड करते हो तो इट बिकम्स 1 FFF minus 04 बराबर 1 FFFF minus 04 that you do. So f का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय f. f का मतलब है 15. 15 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा. 11. 11 when you convert into hexadecimal it becomes what. 9 के बाद B. a के बाद b. So it will become what. What will be the outcome of it. What will be the outcome of it. 1 f f. ये f में से आपने 4 निकाल दिया तो it will become b. Is this count clear now. ये count clear आया आपको. 1 FFB कैसे आया समझ में आ गया आपको. हाँ सर. या अब इसमें से अब आउट ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज या आई विल पुट द काउंट इनटू 2 रजिस्टर. एक जो रजिस्टर होगा मेरा दैट विल बी TL0. एक जो रजिस्टर होगा दैट वुड बी TH0. ओके, एंड फाइनली मेरा जो एक ओवरफ्लो फ्लैग रहेगा उसके अंदर TFX होगा. ओके, सो TF0 होगा. सो लेट्स से मेरा यहाँ से क्लॉक आ रहा है. दिस इज व्हेन इट ओवरफ्लोज इट इन्फॉर्म्स TH0 टू ओवरफ्लो. व्हेन इट ओवरफ्लोज इट इन्फॉर्म्स PR0 टू ओवरफ्लो. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ कि आई विल बी पुटिंग 1 FB over here. I'll be putting 1F over here because FB is my lower byte, 1F is my higher byte. Okay, so मैं क्या करूँगा. मेरा पहला पल्स आया. I've got my first pulse. So what it will do. FB को क्या करेगा. It will increment my lower byte, right. Lower जो मेरा डेटा है उसको इंक्रीमेंट करेगा. FB इंक्रीमेंट होके क्या बनेगा. What it will become. It will become FC. It will become FC. FC बन गया मेरा. अगली बार से फिर से एक और पल्स आया तो व्हाट इट विल बिकम FD. फिर से एक पल्स आया इट विल बिकम FE. फिर एक पल्स आया इट विल बिकम FF.
अभी तक ओवरफ्लो हुआ, एफएफ तक पहुंचा, ओवरफ्लो हुआ आपका, ओवरफ्लो हुआ नहीं हुआ अभी तक ओवरफ्लो नहीं हुआ, इट इज द लास्ट स्टेज। फिर एक और पल्स आएगा, एज सुन एज गेट्स द फिफ्थ पल्स इट विल बिकम ओवरफ्लो। क्यों ओवरफ्लो होगा, एफएफ से ये कहां पे जाएगा, वेयर इट विल गो 0 0 पे। 0 0. That condition of overflowing, that condition of rolling back of the timer is called as overflow. Because it overflows, it will make the content of TH0 के अंदर ये 1 ऐड कर देगा, it will add 1 to it. Okay, 1 ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, because the max count is 1f, यानी ये 1f तक ही जाएगा, इसके ऊपर जाते ही ये क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा। सो 1f जब आपके अंदर अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इट विल गो बैक टू द 0 0. ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes. Because it overflows, it will make this particular flag as 1. So आपका overflow flag जो है वो 1 हो जाएगा। As soon as it becomes 1, it causes an interrupt. ये interrupt अकर कराएगा, ओके? और इंटरप्ट होने पे जो आपका प्रोसेसर है जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा था वो वहां पे हॉल्ट कर देगा। इंटरप्ट होने की वजह से वो ISR पे जाएगा। एज सून एज इट गोस टू ISR, ये क्या करेगा, इस बिट को जैसे ही वो ISR पे पहुंचेगा इस बिट को 0 कर देगा, ISR से सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. So that is your mode 0. That is your mode 0. Okay. Now we'll look into mode 1. Mode 1 जो है that is the most widely used mode because it uses the complete register that we have. Okay. So mode 1 जो है आपका is a 16-bit timer or a counter. So जितने भी आपके bit हैं वो सबको utilize कर देगा वो timer / counter. Okay. So the diagram that you can make is you have just remember हमेशा TLX पहले होना चाहिए फिर THX होना चाहिए। Why? Because हमेशा जो एडिशन आप करते हो वो हमेशा आप यूनिट प्लेस पे करते हो। यूनिट प्लेस में जब वो ओवरफ्लो होता है तब वो 10th प्लेस को ऐड करता है। ओके, सो दैट इज व्हाई while drawing the diagram always remember TLX पहले आना चाहिए, फिर THX आना चाहिए, and then THX जब ओवरफ्लो होगा it will cause the overflow flag to become 1, so then TFX आएगा। ओके, सो TLX कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। THX कितने बिट का होगा, ये भी 8 बिट का होगा। ओके, और TFX जो है वो 1 बिट का ओवरफ्लो फ्लैग है। ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द इनपुट स्टेज से आएगा which is your clock, and output जो होगा it will cause a interrupt अगर होगा, अगर वो TFX 1 बनता है तो। So this is the diagram of your mode 1. So again the same explanation. Can you explain now what is the max count? अगर वो 16 bit use कर रहे हैं तो max count कितना होगा? FFFF. So max count will be equal to FFFF. So again let's assume हमें desired जो count था वो 5 है। Let's assume desired count is 5. Okay, so what is the count that you want to load? What is the total count that you want to load into your timer? Can you calculate the count? FFFB. So it will be FFFB. How it came? FFFF minus 05 plus 1. So करने के बाद आपको FFFB मिलेगा। इसमें से कौन सा कंटेंट TH में होना चाहिए, कौन सा कंटेंट TL में होना चाहिए? FBTL. FBTL में जाएगा। So I'll be loading FB into my TL, which is TL. Let's say we are working in timer 0, so it is in TL0. FF will be stored in TH0. TH0. So I'll put 0 over here. I'll just erase it. So this is my TL0, this is my TH0, and then I have got a TF0. Okay, TF0 मेरे पास है। So अब क्या करोगे यहाँ पे? Pulse प्रोवाइड करोगे। You provide a pulse on TL0 getting overflow. TL0 overflow होते ही वो TH0 को के अंदर एक ऐड कर देगा। TH0 overflow होने के बाद वो TF0 को के अंदर 1 डाल देगा। Okay, this is how it performs. So on getting the first pulse, TL0 का कंटेंट क्या हो जाएगा? FC. It will become FC. On getting the second pulse, it will become TL0 will become FD. FD. On getting the third pulse, it will become FE. On getting the fourth pulse, it becomes FF. Again, अभी भी एक pulse बचा है, अभी भी एक count बचा है,
so that you get the fifth pulse. As soon as you get fifth pulse, इसके अंदर जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? If you add 1 to it, it will become what? 1 plus f is 0, carry 1, 1 plus f is 0, carry 1. So it will become 0, 0. 0, 0 बनते ही क्या बन जाएगा? From ff it goes to 0, 0. So this is called as rollover. This is called as rollover. This condition is called as rollover. Whenever there is a situation of rollover, because of rollover, that timer is overflow. यानी आपका lower जो timer था वो overflow हुआ, और वो जो carry मिला था which is 1, that carry is added to TH0. तो TH0 के अंदर आप 1 ऐड करोगे. So इसके अंदर 1 ऐड करते ही क्या बन जाएगा? 1 plus f is what? Carry 1. 1 plus f is what? 0. Again it generates a carry which is 1. Again ये ff से क्या बन गया? 0, 0. 0, 0 बनते ही क्या हो जाएगा? From ff it becomes 0, 0. This condition is called as what? Rollover. Rollover. So because this timer rolls over, that means it overflows. As soon as it overflows, it informs TF1 I have overflown, or it will make the content of TF0 as 1. 1. As soon as it become 1, it will cause a Enter. Is this process clear now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So the advantage that you get in mode 1 is that you are able to get a maximum delay of FFFF. इतना आप डिले दे सकते हो. यानी अगर आप लेट्स अज्यूम FB की जगह अगर आप 0, 0 इसके अंदर लोड करते हैं और इसके अंदर 0, 0 लोड करते हैं आप, तो कितना काउंट आप कर पाते हैं? हाउ मच मैक्स काउंट दैट यू कैन डू? यू कैन गो फ्रॉम 0, 0, 0, 0 टू FFFF तक जा सकते हो, तभी जाके वो ओवरफ्लो होगा. राइट? Yes. Whereas अगर आप मोड 1 में अगर आप करते, अगर ये मोड 0 में अगर आप करते, तो आप क्या कर पाते? TL0 में आप कितना डाल पा रहे थे? You can go from 0, 0, 0, 0 से कहां तक जा पा रहे थे आप? Yes, sir. 1 F तक आप पहुंच पा रहे थे. इसका मतलब the max count that you were able to achieve was 8192 was the max count you are achieving binary in decimal. Whereas अगर आप मोड 1 सेलेक्ट कर पा रहे हो तो आप टोटल काउंट जो आप कर पा रहे हो that is 65,536 count you are able to do that. So which is a better counter or which is a better timer? Who will give you more delay? ज्यादा डिले कौन देगा? मोड 1 और मोड 0? मोड 1 will give you more delay क्योंकि वो ज्यादा आगे तक काउंट कर पाएगा. जितना काउंट करेगा उतना उसको काउंट करने में टाइम लगेगा, यानी उतना डिले ज्यादा दे पाएगा. सो जितना बिट ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोड काउंट कर पाएगा, उतना ज्यादा टाइमर काउंट कर पाएगा. बिकॉज मोड 1 has it utilizes the complete 16 bit. That is why it is the biggest mode or the biggest timer mode that you have. Biggest count यही देगा. Generally जितने भी प्रोग्रामिंग आप यूज करोगे टाइमर के लिए वो ज्यादातर आप मोड 1 में ही यूज करोगे. ओके? बाकी के मोड इसका मतलब जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है. बाकी के मोड भी उतने ही जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन दैट यू यूज. आप लोगों पे डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज से? आर यू एबल टू हियर दैट? Yes, sir. सो अगर आप मोड 0 अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप 13 बिट का ही काउंट दे पाओगे. मोड 1 सिलेक्ट करोगे आप 16 बिट का काउंट दे पाओगे. मोड 0 जो जनरली है दैट इज जनरली यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन. देन वी हैव गॉट मोड 2. मोड 2 के अंदर आपको ऑटो रीलोड का एक फीचर मिलता है. सो अगर लेट्स से एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे अगर एक रॉकेट लॉन्चर अगर आपने बनाया, उस रॉकेट लॉन्चर में आपने एक रॉकेट लॉन्च किया, अगली बार आपको रॉकेट लॉन्च नहीं करना है तो इन दैट केस आप मोड 0 मोड 1 चूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको बैक टू बैक रॉकेट लॉन्च करना है, यानी हर 1 मिनट के बाद एक रॉकेट आपको लॉन्च करना है, सो इन दैट केस आपको ऑटो रीलोड करना पड़ेगा. वो डिले आपको बार बार वापस से रीलोड करना पड़ेगा. सो इन दैट केस देयर इज अ मोड 2. देन मोड 3 के अंदर वी हैव गॉट अदर फीचर दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. सो हर एक मोड का एक अलग अलग फंक्शनैलिटी है व्हिच यू विल कम इनटू नो लेटर. But out of all these mode that you have studied, जो अब तक हमने देखा है या जो जितने भी अवेलेबल है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड है that is which mode? Mode 1. Mode 1. That is mode 1. मोड क्योंकि मोड 1 जो है आपको मैक्स डिले देता है. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्लाइड में, मोड 1 जो आपको मोड 0 जो मैक्स डिले दे पाता है वो 8192 है बिकॉज इट यूजेस ओनली 13 बिट. Whereas मोड 1 जो है आपको डिले दे पाता है 65,536 का डिले आपको दे पाता है बिकॉज जो नंबर ऑफ बिट है वो 16 बिट है. ओके, सो दैट इज द एडवांटेज दैट यू गेट. देन वी हैव गॉट मोड 3. मोड 3 में देयर इज अ फीचर ऑफ ऑटो रीलोड. ओके,
सो ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में. एंड देन वी हैव गॉट द लास्ट मोड जहाँ पे एक टाइमर जो है उसको आप स्प्लिट कर सकते हो और आप इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 टाइमर्स वी कैन हैव 3 टाइमर्स. ओके, सो ये क्या है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, सो आउट ऑफ ऑल दिस टाइमर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड व्हेन यू आर मेकिंग एनी प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे ज्यादातर आप मोड 1 में ही काम करोगे. रिमेंबर दैट थिंग. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah, so till whatever I've discussed till today, that is a part of your unit test. Okay, so आज तक जितना भी मैंने पढ़ा है, I'll be sharing this slide with you. अगर हो सके तो आप मोड 2 और मोड 3 खुद से पढ़ लेना. अगर नहीं समझ में आए तो मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, लेकिन जनरली यहाँ तक आपका सिलेबस होगा. ओके, जनरली आई विल ट्राई टू अवॉइड मोड 2 एंड मोड 3, बट मोड 1 मोड 2 पे शायद कुछ सवाल बन सकता है. ओके, so remember all these bits. Okay, that is important. यानी मोड 1 में 16 बिट होता है, मोड 2 में 13 बिट होता है, बिकॉज एमसीक्यू में जनरली आप नंबर स्पेसिफिक पे ही जा सकते हो. आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन मोड 0 और द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर काउंटिंग मोड 0 इज 10 बिट्स, 12 बिट, 13 बिट और 16 बिट. आपको एक ऑप्शन चूज करना है. सो अगर आपको ये नंबर याद नहीं रहेगा, you will be losing that marks in that case. Okay, so that is why MCQ will be a biggest challenge. ये इसको लगता है आपको स्कोर करना मतलब आसान है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर इज्जत में अगर आप जवाब दोगे यानी बिना कॉपी किए, तो इट इज अ वेरी चैलेंज. सर ओके, या सर मोड 0 का पहले 8 बिट होगा, बाद में 5 बिट होगा ना? या आई थिंक वो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है. मैं एक बार चेक करता हूँ फिर मैं इन्फॉर्म करता हूँ. ओके सर. या मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे मुझे वो डाउट आया था, बट आई विल चेक एंड आई विल इन्फॉर्म. और किसी को कुछ पूछना है? Anybody has a doubt? Yeah, Abhishek, that point is valid point. I know there might be a मैं एक बार सिर्फ चेक कर लेता हूँ एक बुक में, because I've followed a reference book. उस reference book में this was the approach that they have used. So I have to check क्योंकि वो numerical के solve करने के टाइम पे मैंने जो FB था which was 8 bit वाला content वो मैंने यहाँ पे डाला था और FF जो था मैंने वहाँ पे डाला था. बराबर है? इस वजह से आपको समझ में आया वो point? हाँ. या एग्जैक्टली. सो वो मुझे भी जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी वही डाउट आया कि लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. तो आई जस्ट चेक इट आउट. TLX में 5 बिट है या THX में 5 बिट है. आई विल जस्ट टेक इट आउट एंड आई विल कंफर्म इट बिकॉज आई हैव टेकन फ्रॉम द नोट्स ओनली, आई हैव टेकन फ्रॉम द रेफरेंस बुक ओनली. सो एज पर द रेफरेंस बुक आई हैव फॉलोड दैट डायग्राम. सो आई जस्ट गो थ्रू इट, आई विल जस्ट चेक इट. अगर वो वैसा है तो वैसा क्यों है और उसका रीजन मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा. ओके, Anybody else has a doubt? कुछ कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर अब तक के सब स्लाइड कर देना शेयर. हाँ, मैं वो शेयर कर दूंगा, आज शेयर कर दूंगा आपको. सो अब तक के जो स्लाइड है जो मैंने आपको दिखाया है, पहला जो आपका पहला मॉड्यूल जो था उसका तो मैंने PDF शेयर कर दिया था आपको मेरे ख्याल से. PDF पहला शेयर था और उसके साथ में मैंने PPT भी शेयर किया था. मैं आपको दिखा देता हूँ. या सो आई थिंक मॉड्यूल 1 का हाँ, तो ये PDF मैंने शेयर किया हुआ था ना आपको. Yes. हाँ, तो ये मेरे ख्याल से आपके पास होगा. इसके अंदर पूरा मॉड्यूल 1 कवर है ऑलमोस्ट. ओके, और अगर कोई पार्ट रह गया है तो उसका मैंने पॉइंट YouTube पे डाल दिया है, आप उधर से वीडियो देख सकते हो. बट जनरली यही सारे पॉइंट्स है जो वहाँ पे लिखे गए हैं. ओके, उसके अलावा ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हमने स्टार्ट किया था फीचर्स ऑफ 8051. सो इसके ऊपर भी आपके MCQ बनते हैं, जैसे कि ALU जो है आपका कितने बिट का है. सो ये सवाल पूछा सकता है. रैम कितने बिट का है या बाइट का है. सो ऐसे कुछ सवाल बन सकते हैं. इंटरनल रैम का साइज क्या है, इंटरनल रैम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, EA का यूज क्या है. ओके, सो ये सारे इंटरप्ट्स कितने होते हैं 8051 में, तो यहाँ पे लिखे हुए 5 इंटरप्ट है. फिर पावर सेविंग मोड्स कितने हैं या पावर मोड्स कितने हैं, तो 2 पावर मोड्स हैं. तो ये सब फीचर्स से सवाल आएंगे. फिर फ्रीक्वेंसी क्या है 8051 का, अगर आप लास्ट पॉइंट देख पा रहे हो, इट इज अ 12 megahertz. So these numbers are very important. Okay, so remember those numbers because MCQ में वही numbers काम में आने वाले हैं. Timers कितने बिट का है, तो 16 बिट का टाइमर है, 2 16 बिट का टाइमर है, whether it is up counter down counter. So all these जहाँ पे आपके multiple choices हो सकते हैं, remember try to study all these points. Okay, so ये मैंने वहाँ पे डाल दिया. पिन डायग्राम के अंदर ये डायग्राम मैंने डाला था. हर एक का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो.
सो अगर EA का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो EA इज नथिंग बट इट इज एक्सटर्नल एनेबल एक्सटर्नल एक्सेस. सो अगर आपको एक्सटर्नल रॉम एक्सेस करना है तो आपको EA का जो कंटेंट होगा 0 करना होगा या 1 करना पड़ेगा, विच बेसिकली टेल्स यू कि आपको इंटरनल रॉम को अलाउ करो या डिस्कार्ड करो. सो वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है. उसके बाद हर एक का कुछ यूटिलाइजेशन है, हर एक पिन का कुछ ना कुछ रोल है, अलग रोल है. सो वो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से देख सकते हो. आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8051 मैंने खुद से हाथ से बनाया था, क्योंकि जो बुक में था वो इट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स. सो आई थॉट कि ऐसा एक डायग्राम मुझे मिला था ऑनलाइन, तो मैंने उसको हाथ से ही बनाया था और ये आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. देन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 4 डिफरेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल रैम, इंटरनल रॉम, एक्सटर्नल रॉम. हर एक का मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है. अगेन द नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 KB. आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ है. इंटरनल, हाँ बराबर है, बराबर 4 KB है. देन 4 KB प्लस 60 KB एंड फाइनली 64 KB का कॉम्बिनेशन. सो हर एक में EA का कंटेंट क्या होगा, दैट क्वेश्चन कैन कम ऑन दैट आल्सो. ओके, देन या सो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो. अगेन रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सवाल पूछा जा सकता है, बिट एड्रेसेबल एरिया में कितने बिट्स होते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स दैट आर देयर इन बिट एड्रेसेबल एरिया? 128. 128. What is the total number of bytes allocated for bit addressable area? Bytes कितने allocated है? 16 bytes. So ऐसे सवाल पूछ सकते हैं. What are the total number of bytes allocated in the bit addressable area? 10 byte, 16 byte, 12 byte, 32 byte. आपको चूज करना है. So out of that, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको ये नंबर याद होगा, then only you can select that. Similarly, how many banks are there in internal RAM? So एक बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक. How many banks we have? 4. 4 banks. Each bank has how many registers in it? 6 register, 7 register, 8 register, 9 register. 8 register. So you have to go with number. The number is very important. Okay, so don't forget to read. Number कब आएगा? जब आप समझोगे, आप हर एक चीज सुनोगे, दोबारा रिविजिट करोगे, पढ़ोगे, तभी वो नंबर आपको जहन में आएगा. ओके, और आइदर गो विद दिस स्लाइड में ही आपको ज्यादातर कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें स्लाइड से मिस आउट हो जाती है. So you can refer the videos. I've uploaded all the videos. Okay, so you can check out all the videos which is there. So इसके अंदर मैंने डाला है. इसके अंदर एक स्लाइड मैंने SFR मैंने डाला है. So इसमें से ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि out of all the SFR that are available, how many are bit addressable SFR? Bit addressable कौन से? So अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, B का हर एक बिट आप एड्रेस कर सकते हो. एक्यूमुलेटर को यानी A रजिस्टर को आप एड्रेस कर सकते हो. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को आप एड्रेस कर सकते हो. 3 हो गए. IP को आप एड्रेस कर सकते हो. 4. P3 को आप कर सकते हो. IE को कर सकते हो. P2 को कर सकते हो. SBUF को नहीं कर सकते आप. SCON को आप कर सकते हो. P1 को कर सकते हो. TH को नहीं कर सकते. TL को नहीं कर सकते. TL1 को नहीं कर सकते. TL को नहीं कर सकते. TMOD को आप नहीं कर सकते. TCON को आप कर सकते हो. PCON को कर सकते हो. PCON को नहीं कर सकते आप. सॉरी, यहाँ पे TMOD को भी कर सकते हैं. एंड देन P0 को कर सकते हो. तो कितने कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और एक TMOD भी है मेरे ख्याल से. हाँ, TMOD होता है. सो 12 रजिस्टर आउट ऑफ द SFR आर बिट एड्रेसेबल. टोटल SFR कितने? हाउ मेनी SFR वी हैव इन टोटल? 21. So that number is also very important. So सवाल पूछा जाता है, how many 8051 has SFR in it? So is it 18, is it 16, is it 21, or is it 32? So you have to choose the appropriate number. Out of the 21 SFR, how many are 16-bit SFR? 1, 2, 3, 4. 2. Which are those? 2. DPTR. DPTR and EC. So yeah, ऐसा सवाल बन सकता है. Then yeah, SFR, general SFR, which is the 19 SFR that we have, are they 8-bit SFR, 16-bit SFR, 32-bit SFR, or 64-bit SFR? 8-bit. So ऐसा सवाल बन सकता है. Then yeah, so ये कुछ सवाल है. उसके बाद इंस्ट्रक्शन का मैंने नहीं डाला बिकॉज इंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रहा था और काफ़ी टाइम लग रहा था. मैं कोशिश करता हूँ अगर, बिकॉज क्या प्रॉब्लम है कि आई हैव टू मेक द क्वेश्चन सेट फॉर फाइनल ईयर ऑल्सो. फाइनल ईयर का भी एग्जाम होने वाला है. आई जस्ट पॉज इट. आई पॉज द लेक्चर जस्ट अ सेकेंड. हाँ, just because